Good morning. So till now we have completed index, last index of Indian index of. Before that, slice, splice, concat, and push, pop, shift, unshift. Okay. So index of, why we are using index of? Index of is used to identify the position of an element in an array, and last index is find the last index or last occurrence of the element in an array. Right? Okay. But what is find and find index and why it is used? Let me open this. Okay. So find, what does it mean? Find is used to find specific element inside an array. Find is used to find an element of reference value in an array of object and return it. Okay. So what is the problem with find index of? फाइंड इंडेक्स, फाइंड क्या करता है? एन एलिमेंट फाइंड करता है किसके अंदर? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर. रिमेंबर, जैसे मैंने बताया था आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूं. अपने इंडेक्स सब पढ़ चुके हैं, राइट? वी नो इंडेक्स सब. Index of is used to find the position of an element in an array. So for example, it is an array, but it contains object inside it. It is not simple element, right? So if it object is a reference value, so if we want to match this one, if you want to find the position of name equal to ck, this object inside this the whole array, then it will not return true, it will return -1. Look, -1. Why it is written -1? Because according to our theory, if this element is not inside this array, then it will return -1. But you can see there is an same name object with same name and property, right? Same key and value already there, but still it's throwing an error. Kyun? Because it is not a primitive data type. It is a reference data type, so we cannot match it like this, right? And index of में हम we don't have any way to find out an object, position of an object inside an array. If this is an array of object, then it is very difficult to find out the position of that object inside this array. So that's why we use. And how can I identify whether the element is inside it or not? Includes, right? But this includes function also, it will not work. Includes, I will let you know over here. Includes will not work because it is again not in primitive array. So to find this position of an object inside an array of object, we have to use find index. What do we have to use? Find index. So let's see what is find index. Find is used to find an element. If especially it is an array, then you can find this element inside an array. And index, find index, you can find the position of the object inside the array of object, right? So let's see. So editor is visible clearly? Yes, sir. Okay. So now let's explain me the question, the code. So I have defining one array of object which contain name equal to ck and name equal to Pravat. Okay. And I want to find the index of name equal to ck. Then it will return -1. I have already explained this. Yes or no? Yes, sir. Right? You can see it will return -1. So how can I find this position? Now let's enable this code and try to understand. So find method. So what find method does? So find method identify or find what?
the object inside an array. So ये return क्या करता है? Let's see. So specially find is a method, array manipulation method which accept a callback. Remember, ऊपर से जितना भी हम पढ़ के आए थे, they does not accept any callbacks. Remember, इंडेक्स ऑफ में हम डायरेक्टली एलिमेंट पास करते थे, लास्ट इंडेक्स ऑफ में एलिमेंट पास करते थे, पुश पॉप जो भी यूज करते, कॉन्कैट में क्या पास करते थे? एरे, मींस डायरेक्ट एलिमेंट पास करते थे. लुक एट इट, इज इट विजिबल? पुश पॉप में भी देखेंगे, यू कैन सी वी आर पासिंग डायरेक्टली पोजीशन एंड द एलिमेंट, राइट? बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम फाइंड and find index and there are other methods as well, they always accept a callback. Remember, this is an arrow from function, right? Inside the arrow function I am writing whatever that, this is the function body, arrow function body. I can either writing arrow function or normal function, anonymous function. कैसे लिखेंगे हम? Function, then we can remove this fat arrow from here. We can write in this way as well, right? Insert find always accept an callback function, and this callback function accept three parameters. One is every element of this array, second one is the index of that element, and persons means this original array also we can pass over here, and we can manipulate that as it is a function. Callback function क्या है? एक function, and ये function के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज फंक्शन स्पेशली हमको अलाउ करता है तो कुछ भी मॉडिफिकेशन मैनुअली मॉडिफिकेशन करने के लिए हमको अलाउ करता है. सो फ्रॉम find you can see it accept not directly an element but it accept and callback as a parameter. We are passing a function, anonymous function which is called a callback. So ये callback क्या क्या पास कर, क्या क्या parameter accept करता है ना? first parameter is the array का every element, each element you can get it from here, then it is index, then original array से पास होता है, तो हम उसको मैनिपुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे आपको जरूरत है. तीन पैरामीटर हम इसमें पास कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ओके, तो फाइंड क्या करता है? एज आई एक्सप्लेन दैट वी हैव टू फाइंड वेदर एन एलिमेंट इज देयर और नॉट. सो व्हाट इट डज, सो ये क्या करता है? पर्सन, हर एक एलिमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा. एलिमेंट हियर, एलिमेंट मींस एन ऑब्जेक्ट. every element is an object, right? So every object it will pick or iterate every object, then it will find if the name property equal to ck. If it return true, then this element will be written by this find method and my name will store that. Okay, let's see. Offset. Look, so I have, look at this. So I'm printing the index. You can see index is 0. Okay, then once it find this match, then it will return first the element or a object which is matched. Then I have printing the original array as well. हटा देता हूं. Okay, so you can see the object means जिसके साथ मैच हुआ. हम फाइंड क्या करने वाले थे कि जिसका नेम CK, जिस ऑब्जेक्ट का नेम वैल्यू में CK स्टोर किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली एज एन रेफरेंस वी कैन फाइंड आउट एनी एलिमेंट. सो वी कैन यूज समथिंग लाइक दिस. इफ इट रिटर्न ट्रू, देन इट विल प्रिंट दैट पर्टिकुलर एरे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये एक्चुअली रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, राइट? जहां पे ट्रू मिलेगा, जो यहाँ पे मैं ट्रू पास कर दूंगा, देन व्हाट इट विल रिटर्न, अगेन इट विल रिटर्न फर्स्ट वन. बिकॉज फर्स्ट टाइम इसको सपोज ट्रू मिल जाता है, देन इट विल मैच, इट विल रिटर्न दैट एलिमेंट. ये कोई भी एक चीज को फाइंड करने जाता है जहां पे हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इनसाइड दिस कॉलबैक फंक्शन, लाइक नेम इक्वल टू CK. यहाँ पे नेम इक्वल टू CK की जगह में सपोज नेम इक्वल टू प्रभात लिखूंगा, देन इट विल रिटर्न प्रभात. जिसके पास वो ट्रू होगा वो रिटर्न करता है. देखो, तो व्हाट हैपन, फर्स्ट
each element will be iterated through this function. So first it will take the first one element, which one? Name equal to this object, right? So it will match whether person dot name, right? Person is the object, then its property name equal to Prabhat, then it will return this element, right? So first initially when person, what person content, na name equal to name ck, then it will check, it return false. Then what it will do, it will iterate another element like this one, right? Then it will match and it return. So you can see the index, it iterate twice, means first time it will not return anything. For second time, when index equal to 0, it will return Prabhat because it matched, right? So anyway, it will match whatever condition you want to apply over here, but ultimately it will return for which element it will return true, this element will be returned, right? Clear? So specially find is used to find an object inside an array of object. ये सिंपल एलिमेंट नहीं है, तो हमको कोई फंक्शन, कोई कंडीशन अप्लाई करके फंक्शन के अंदर लिखना पड़ता है. सो ये कॉलबैक, इट एक्सेप्ट कॉलबैक, एंड इनसाइड कॉलबैक व्हाटएवर कंडीशन यू कैन अप्लाई टू फाइंड दैट एलिमेंट, यू कैन डू दिस. अभी सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी मैच नहीं करवा रहा हूँ, सो व्हाट इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न अनडिफाइंड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. ओके और यहाँ पे सपोज दोनों में मैंने क्या किया, सीके कर दिया. सो ये कौन सा रिटर्न करेगा ना, पहली बार उसको जो मिलेगा उसको ही रिटर्न कर देता है वो. सेकेंड टाइम कुछ मिलेगा तो उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा, राइट? सो कोई एलिमेंट, आप एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हो, इफ यू वांट टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट इनसाइड एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, देन यू कैन मैच विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स वैल्यू, सॉरी कीज वैल्यू. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम मैच नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज रेफरेंस टाइप डेटा टाइप, इट इज रेफरेंस टाइप. This its data type is reference, direct not value, you can access it, right? So to match it, how we can do, like person means यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट आता है, the object dot name, person dot name equal to ck होगा तो it will return, right? यहाँ पे कोई डाउट है? पर्सन पैरामीटर क्या करेगा? पर्सन पैरामीटर यूज हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट, हर एक एलिमेंट इसमें. पर्सन्स कुछ नहीं, आपको कुछ जरूरत है तो ये यू कैन यूज दैट, बट ये थर्ड पैरामीटर एक ऑप्शन है हमारे पास जो ओरिजिनल एरे पास करके ले जाने का, राइट? यहाँ पे यूज नहीं है कुछ भी, बट आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू प्रिंट इट, आई कैन डू इट. इसका कोई यूज नहीं, बट ये एक्सेप्ट करता है ये पैरामीटर, ऐसा समझ रहे हो? yes. ये ऊपर वाला 2 एलिमेंट पास हुआ, मतलब मिलता है, यू कैन एक्सेप्ट दैट. जो 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, इसमें फर्स्ट पैरामीटर इज एवरी एलिमेंट ऑफ दैट एरे, सेकंड पैरामीटर इज द इंडेक्स, थर्ड पैरामीटर इज द होल एरे, यू कैन पास. सो व्हाटएवर यूसेज is there, it is up to you, up to your logic, what it is required for this project, for your project, right? Okay sir. और यहाँ पे सपोज ये console.log person यहाँ पे लिखूंगा, does it work or not? It will not work because after return or control never go after return, go next to return. रिटर्न के बाद ये फंक्शन एंड हो जाता है, फंक्शन की बॉडी यहाँ तक ही आएगा. इसके बाद रिटर्न के बाद कुछ भी लिखूंगा, इट विल नॉट एग्जीक्यूट इनसाइड दिस फंक्शन बॉडी है, इसके बाहर तो एग्जीक्यूट करेगा ये. क्लियर? यस सर. सॉरी. नेक्स्ट इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स. ये फाइंड क्या करता है, एलिमेंट फाइंड करने के लिए रिटर्न करता है. जैसे यहाँ पे फाइंड एलिमेंट रिटर्न कर रहा है मेरे को, नेम इक्वल टू ck, जिसके साथ मैच होगा उसको मैं लेके आ जाता है. अब मुझे वो पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड करनी है, रिटर्न करनी है, तो कैसे करूंगा मैं? अभी एलिमेंट फाइंड किया मैंने, हाँ, तो फाइंड इंडेक्स.
और ये नॉर्मल एलिमेंट होगा तो अपने इंडेक्स ऑफ ऑपरेट मेथड यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली मैच नहीं कर सकते, तो वहां पे फाइंड इंडेक्स यूज करेंगे. अगेन फाइंड इंडेक्स ऑल्सो एक्सेप्ट वन कॉलबैक, and this callback accept three parameters. One is again every element of the array, then index, then the original array. We can pass three elements. Then you can again same here, but here return the index rather than element. It will return the index of that element. So yes, same object I am using over here. Name equal to CK, name equal to Prabhat. ओके अब ये जिसका whose name is Prabhat will return its position, not that element. So look, position is 1. So in array this is 0th position, name equal to name CK, and name equal to Prabhat is the first element, 1 position, 0 and 1 position, right? So it will return जिसके साथ ये रिटर्न, जिसके साथ ये मैच किया, सो ये ट्रू होगा. जब ये ट्रू होगा देन इट विल रिटर्न दैट पोजीशन. ओके, सो ये फर्स्ट टाइम ये इटरेट हुआ तो फर्स्ट टाइम ये इंडेक्स प्रिंट हुआ, देखा आपने, बट ये फॉल्स गया, देन इट विल रिटर्न नल, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं किया. बस जैसे ये किसी और के साथ मैच किया, किसके साथ, प्रभात के साथ, सेकंड एलिमेंट, अगेन सेकंड एलिमेंट आया जिसका इंडेक्स 1 है, एंड ये रिटर्न किया उसका पोजीशन, राइट. ये तो अपना प्रिंट करने के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे 1 by 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट प्रिंटिंग दिस वन, राइट. If I comment this, then if you understand it, then I don't want to print this one, because you understand that every element of the array will be executed as soon as you find the particular index of that array, a particular object, then it will return its position, right. अब 1, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा जो मैच नहीं कर रहा है, then it will return what, -1, simple, just like index of, राइट. सो यहाँ पे मैं जैसे ये अल्टीमेटली ये रिटर्न क्या करता है, एक बुलियन, ट्रू और फॉल्स. मैं यहाँ पे सपोज ट्रू लिख दूंगा, देन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये पहला फर्स्ट वैल्यू का पोजीशन रिटर्न कर देगा, देखो 0, क्योंकि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट में भी ट्रू मिल जाता है, उसको ट्रू मिलता है मतलब उसका पोजीशन निकाल देता, डिस्प्ले कर देगा वो, राइट. सो इस तरीके से हम यूज नहीं करने वाले. कभी कभी कोई पूछ सकता है कि यहाँ पे ट्रू दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिटर्न क्या करता है, ट्रू और फॉल्स, राइट. बट जो एलिमेंट के लिए ये ट्रू रिटर्न करता है वही एलिमेंट की पोजीशन ये रिटर्न कर देता है, फाइंड इंडेक्स. एंड फाइंड क्या करता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही रिटर्न करता है इंस्टेड ऑफ इट्स पोजीशन, राइट. तो फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स कैसे काम करता है, इज इट क्लियर? यस सर. इंक्लूड सेकंड में बताया था, कोई एरे के अंदर कोई एलिमेंट इंक्लूड्स है तो ये फाइंड कर लेता है. जैसे हम नॉर्मली कैसे फाइंड करते हैं, ये एरे के अंदर कोई एलिमेंट है कि नहीं, ना इंडेक्स ऑफ दैट नॉट इक्वल टू -1, देन हमको पता चलता है कि इट इज ऑलरेडी देयर. इफ इट रिटर्न -1, देन दिस एलिमेंट इज नॉट इनसाइड दिस एरे. बट देयर इज एन अनदर वे टू आइडेंटिफाई और know that whether the element is inside the array or not, that is includes. हमको सपोज पोजीशन मिलता है तो हमको क्या पता चलता है कि इंडेक्स ऑफ 11 सपोज इसके अंदर है तो उसका पोजीशन रिटर्न करता है 0 to एनी पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है. देन व्हाट डज इट मीन, मींस ये कोई एक पोजीशन में तो है ही वो एलिमेंट, राइट. हमको तो क्या जानना है, वी वांट टू नो वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस एरे और नॉट. सो वी कैन यूज आइदर इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड्स. सपोज इंडेक्स कौन सी पोजीशन में हमको नहीं जानना है, हमको खाली ये एरे के अंदर एग्जिस्ट, ये एलिमेंट पर्टिकुलर एरे के अंदर एग्जिस्ट है कि नहीं ये जानना है, देन वी कैन यूज इंक्लूड्स मेथड, राइट. क्लियर? प्रिमिटिव के Yes, हम sir. ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज फाइंड इंडेक्स. Okay, another loop
अपने फॉर इज, फॉर ऑफ, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ये पढ़े थे आपने, राइट। सो फॉर इज, फॉर ऑफ क्या करता है, एरे को इटरेट करता है। फॉर इन क्या करता था, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इटरेट्स। बट फॉर ईच क्या करता है, अगेन वो एरे के लिए फॉर इन जैसा ही काम करता है, बट फॉर इन में क्या होता है, फॉर इन में क्या होता है, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द एलिमेंट, बट आपको सपोज एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है तो नहीं कर पाओगे, राइट। देखो फॉर ऑफ, सॉरी फॉर इन नहीं, फॉर ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो फॉर ऑफ में मैं क्या करता हूँ, लुक एट दिस, फॉरगेट अबाउट दिस फॉर नाउ। ये क्या करता है कि एग्जिस्टिंग, मेरे को और एक एलिमेंट ऐसे तो सपोज हर एक एलिमेंट को लेना है और दूसरे एलिमेंट में पुश करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये प्राइस और एक एरे में पुश किया, ये प्राइस को लिया और इसमें टेक्स हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया, एंड एक थर्ड एरे में पुश कर दिया मैंने। क्लियर, यस और नो? तो इस तरीके से No. एग्जिस्टिंग, देखो यहाँ पे एक एरे बनाया मैंने और वो एरे में पुश किया, ये एम्प्टी एरे, ये एक एम्प्टी एरे Yes, बनाया, sir. इसमें Yes. हर एक एलिमेंट प्राइस का एक एक एलिमेंट लिया, उसमें क्या किया मैंने, टेक्स करके एक वेरिएबल रखा था जो 0.09%। सो 0.09 इसमें मल्टीप्लाई किया 1 प्लस टेक्स, मतलब 1.09 मल्टीप्लाई किया, मतलब इतना परसेंट टैक्स ऐड हुआ, दिस इंटू 1.09 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब इतने परसेंट टैक्स इसमें ऐड करके एक दूसरा एरे बनाया मैंने और उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो इट इज पॉसिबल, look, I can create another array, but without altering the original array. What is the original array? The price is price one. देखो प्राइस जैसे था ऐसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो फॉरिन के तरह हम कर ही सकते हैं, राइट? यस और नो? फॉर ऑफ, सॉरी, यूजिंग फॉर ऑफ कर सकते हैं, बट फॉर ईच सिमिलरली काम करता है। लुक, डिड यू सी? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को खाली प्रिमिटिव वैल्यू को कुछ भी बना सकते हो एज ए प्रिमिटिव वैल्यू। देखो ये यहाँ पे जो ये आई जस्ट क्रिएट अनदर एरे, आई पुश दैट, यू कैन सी दिस इज आल्सो कंटेन द प्रिमिटिव वैल्यू, राइट? बट आपको सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना लाइक दिस, जैसे मैंने क्या किया, वो इंडेक्स एंड प्राइस को लेके एडजस्ट प्राइस करके एक की बनाया, इंडेक्स करके और एक की बनाया, और इसमें इंडेक्स पुश किया और यहाँ पे और एक की बनाया जो टेक्स्ट एडजस्टेड प्राइस, उसमें टेक्स्ट डाला, एंड आई एम क्रिएटिंग अल्टीमेटली एन ऑब्जेक्ट। सो फ्रॉम ईच एलिमेंट आई एम क्रिएटिंग कंप्लीटली अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट? इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। देखो ये इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स पास किया, ऐसा इसके अंदर और भी कुछ ऑब्जेक्ट पास करना तो भी पास कर सकते हो, बना सकते हो, कुछ भी मैनुअली बना सकते हो आप, एंड इसको अगेन एरे में पुश कर सकते हो। बट ये जो कर रहे हो हम, ये यहाँ पे माइट बी पॉसिबल नहीं होगा, बट यहाँ पे होगा। क्यों? बिकॉज हियर वी आर यूजिंग अगेन ए कॉलबैक फंक्शन। रिमेंबर, यहाँ पे तुमको प्राइस मिलता ही है, बट यहाँ पे भी मिलता है, बट यहाँ पे इंडेक्स करके एक वैल्यू मिलता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता, आपको मैनुअली ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी एंड उसको फिर इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, राइट? यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे लेट इंडेक्स इक्वल टू 0, राइट? और इंडेक्स को फिर इसके अंदर मैंने कहीं पे इंक्रीमेंट करवाऊंगा, कैसे?
ना इंडेक्स प्लस प्लस, ये करवाना पड़ेगा ताकि मुझे इंडेक्स मिल पाएगा, बट यहाँ पे कोई इंडेक्स करके वैल्यू मुझे नहीं मिलता है। क्लियर? बट इन केस ऑफ for each, there is a by default parameter which you can pass, which accept by the callback inside the for each the index. इसको इंडेक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? जो सेकंड पैरामीटर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर इंडेक्स, सो आई लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, या आईडीएक्स भी लिख सकते हैं, देयर इज नॉट एन इशू। तो ये डायरेक्टली हमको मिलता है, और ये इसको यूज करके हम कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमको प्रोवाइड किया करता है फंक्शन। फंक्शन के अंदर कुछ भी हम कर ही सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना है तो, राइट? सपोज हमको ऐसा करना है कि जी हर एक एलिमेंट लेना है जिसका वैल्यू, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, इफ राइट प्राइस ग्रेटर देन 6, राइट? जिसका प्राइस ग्रेटर देन 6 होगा, उसके अंदर मैं एरे बना के पुश करूंगा। ये मेरा कस्टम लॉजिक हुआ, राइट? एंड ये पुश भी करूंगा मैं। ओके, तो मैं कस्टम लॉजिक लिखा, जब प्राइस इज ग्रेटर देन 6 होगा तब जाके मेरा ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये होगा। ऐसे कर सकता हूँ, या मैं समझ यहाँ पे रख सकता हूँ आई इक्वल टू आई डी एक्स, या इंडेक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 2 होगा, तब जाके मेरा काम करेगा। सो लुक एट इट हाउ इट वर्क, लुक, सो ओनली वन एलिमेंट इज हियर, क्योंकि मैंने क्या किया था कि इंडेक्स वैल्यू 2 से ज्यादा होगा तो ही जाएगा, तो 2 से ज्यादा मतलब 0 1 2 मतलब 3, ओनली वन एलिमेंट इज गोइंग टू बी satisfied, and using this element I am creating an object and push to this text adjusted price array. Clear? ऐसे भी जैसे किया था कि प्राइस इक्वल टू ग्रेटर देन 6, उसका ही खाली बनाएगा। तो देखो ये बना है, जो 6 से ज्यादा उसको ही खाली कर लिया। 13 एंड 7 मीन्स 6 से ज्यादा है, मतलब ये है और ये है 10 एंड 6.59, ये दोनों ही एलिमेंट गेट किया उसने, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे कोई भी कस्टम लॉजिक हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग ए कॉल बैक फंक्शन। फॉर ईच अलाउ यू टू write your custom logic inside the callback function, but in case of for off loop it is not possible to write something like this, conditions and all this stuff we cannot do over there. Clear? दोनों के अंदर कंपैरिजन पता चल गया आपको? हेलो, फॉर ईच एंड फॉर ऑफ के अंदर दोनों एरे को ही इटरेट करते हैं, बट फॉर ईच क्या करता है, आप कस्टम लॉजिक वहां पे राइट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ, बट यहाँ पे नहीं कर सकते हो, राइट? फॉर ईच में कुछ नहीं कर सकते हो। इंडेक्स भी डायरेक्टली मिल जाता है, पर्टिकुलर एलिमेंट की पर्टिकुलर इंडेक्स आपको डायरेक्ट मिल जाता है, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, पर्टिकुलरली प्लस प्लस इंडेक्स करके आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा इजी होता है, स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दिस इंस्टेड ऑफ फॉर ऑफ, राइट? कभी भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का लूप घुमाना है तो हम फॉर ऑफ के अलावा हम क्या करेंगे, फॉर ईच यूज करेंगे, जिसमें फॉर ऑफ फॉर इन दोनों का मिक्सचर आ सकता है। हम कर सकते हैं, कस्टम लॉजिक अपना लिख ही सकते हैं, राइट? इफ इट इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो वी कैन मैनिपुलेट इट वेरी इजीली। यस और नो? अभी समझ में आया ये कैसे काम करता है? आप डिफरेंस में कंपेयर करने जाते हो तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये कोई पूछता है तो ऐसे बता सकते हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन यूज फॉर ईच, ना फॉर लूप ना फॉर ऑफ लूप यूज करते हैं हम। जब लाइव प्रोजेक्ट में काम करोगे फॉर लूप बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर ईच में
ये सब यूज होने वाला है, फाइंड इंडेक्स ये सब, क्योंकि यू हैव टू डील विथ ऑलवेज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे ऑब्जेक्ट के साथ ही आपको खेलना रहेगा, राइट। ये इस तरीके के एरे बहुत ही कम मिलेगा आपको, कभी कभी मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज यू हैव टू डील विथ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? map method also, it is very important method. Map is create a brand new array by calling the specific function on each element. अगेन ये मैप मेथड क्या करता है, एक ब्रांड न्यू एरे क्रिएट करता है, जस्ट लाइक स्लाइस, राइट। स्लाइस में क्या कि एग्जिस्टिंग एरे से मैं दूसरा एरे बना सकता हूँ विदाउट इफेक्टिंग ओरिजिनल एरे, राइट। किसी में ओरिजिनल एरे इफेक्ट नहीं होता, यू कैन सी। क्लियर? देखो इसमें भी वही है, मैप मेथड एक्सेप्ट एंड कॉलबैक मेथड, and callback method accept 3 parameter. One is every element, second one is index, third one is again the whole array, right? Then वो array को मैं क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता है इसको, एंड ये वेरिएबल यहाँ से रिटर्न करता हूँ, एंड दिस रिटर्न वेरिएबल स्टोर ओवर हियर डायरेक्टली। अभी फाइंड इंडेक्स और मैप के अंदर डिफरेंस, सॉरी फॉर ईच एंड मैप के अंदर डिफरेंस क्या है बता रहा हूँ। फॉर ईच में क्या करते हैं, ये रिटर्न नहीं करता कुछ भी, रिमेंबर फॉर ईच डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। जो भी होगा एक नॉर्मल एक एरे अपने क्रिएट करते थे, फिर इसमें डायरेक्टली मैनुअली पुश करते थे, नॉट डायरेक्टली, मैनुअली हमको पुश करना होता था, राइट। बट मैप मेथड क्या करता है, इट इज सिमिलर टू दी फॉर ईच, बट इट विल रिटर्न a particular element, right? ये एलिमेंट रिटर्न करता है एंड इट विल स्टोर एज एन अनदर एरे, ब्रांड न्यू एरे। रिमेंबर ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट में काम करेंगे, ये मैप मेथड ही यूज करेंगे, ऑलवेज 80%, 80 के 90% टाइम वी विल यूज मैप मेथड। ये क्या करता है, कुछ भी मैनिपुलेशन यहाँ पे करना है, जैसे इस तरीके से रखा मैंने, बट मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस एज एन ऑब्जेक्ट, मैं क्या करूंगा, ऐसा लिखूंगा कि ULLI HTML एम्बेड करूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये जरूरत होता है रिएक्ट में, और यहाँ पे HTML LI क्लोज हो रहा है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर LI या कुछ भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा। कैसे प्रिंट करूंगा, जैसे प्राइस में से वैल्यू ही आ रहा है, सो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे प्राइस सपोज LI में प्रिंट किया, तो ये क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, देखो आप, ये LI के अंदर ये प्रिंट कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे HTML के साथ हम जो न्यू एरे बनाएंगे, राइट। ये एग्जिस्टिंग एरे तो प्राइस है ही, जैसा था ऐसा ही है, ये देखो ऊपर वाला, राइट। बट ये ब्रांड न्यू और एक एरे बनाया जो मैनिपुलेटिंग द एग्जिस्टिंग एरे एलिमेंट, राइट। सो यहाँ पे कोई एरे एज एन प्रिमिटिव वैल्यू ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तुम एरे एज एन ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, फॉर जस्ट लाइक फॉर ईच। बट ये क्या फॉर ईच क्या करता है, वो रिटर्न तो वो कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, बट दैट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। आपको सपोज ऐसा कुछ करना है, एक एग्जिस्टिंग एरे को लेके कुछ डिस्प्ले करना है, तो यू कैन फॉर ईच, यू कैन यूज फॉर ईच। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अनदर एरे यूजिंग एग्जिस्टिंग एरे and you want to manipulate every element of that array, then you have to use map method. Remember, because map method allow you to create a brand new array, okay, and using the existing array, आपके पास जो existing array है उसको यूज करके we can create a brand new array without affecting the existing array. एग्जिस्टिंग जो एरे है वो इन फ्यूचर सपोज यूज करना आप यूज कर सकते हो, बट उसको यूज करके आप एक ब्रांड न्यू एरे क्रिएट कर सकते हो एंड मैनिपुलेट ऑल्सो कर सकते हो ईच एंड एवरी वैल्यू को। क्लियर?
सो इट इज ऑल्सो मोस्ट यूज मेथड जस्ट लाइक फॉर ईच भी बहुत यूज होने वाला है, बट मैप भी बहुत यूज होने वाला है। बट मैप कहाँ पे यूज होगा, जब आप कोई ब्रांड न्यू एरे क्रिएट करना चाहते हो यूजिंग एग्जिस्टिंग एरे से, आप कर सकते हो डायरेक्टली। बट फॉर ईच में क्या है कि आपको एक एरे ऐसे बनाना पड़ेगा, देन यू कैन पुश द मैनिपुलेटेड या ब्रांड न्यू एरे आपको क्रिएट करना पड़ता है मैनुअली। आफ्टर दैट यू कैन पुश ऑल योर मैनिपुलेटेड डेटा टू दैट एरे, मैनुअली आपको करना पड़ता है, राइट। बट आपको सपोज इसी के अंदर प्रिंट करना है या कुछ करना है तो फॉर ईच इज बेटर, आपको खाली डिस्प्ले करने के लिए, राइट। बट आपको सपोज जो भी मैनिपुलेट करके आपको कहीं पे स्टोर करना है, बाद में यूज करना है, तो मैप मेथड इज बेस्ट। सो मैंने यहाँ पे पहले स्टोर करके ये यूएलएल रखा है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, इसके अंदर सपोज मैं प्रिंट करना चाहूंगा, क्या प्रिंट करूंगा ना, यूएल के अंदर यूएलएल आता है ना। Yes, sir. फिर ये यूएल क्लोज किया मैंने, और इसके अंदर आपको क्या करना है, जो बनी हुई है एल सबको प्रिंट करना है आपको। तो कैसे करोगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर ये डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा। कहाँ पे, इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट कर दिया ये। इसके अंदर देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो किस तरीके से प्रिंट हुआ। देखो ईवेल के अंदर एल आई प्रिंट हुआ, एक कॉमा बीच बीच में कहाँ से आ गया। अच्छा, ये प्राइस एरे में कॉमा आ रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से रिएक्ट में स्पेशली ऐसे ही यूज होता है, जैसे आपको कहीं पे एक मैनिपुलेट करके एरे बनाना है और उसको एक जगह में लाके प्रिंट करना है, यू कैन डू इट। क्लियर। मैप मेथड एंड फॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग। अब सॉर्टिंग आपको याद है, सॉर्टिंग कोई किसी ने पूछ रहा था कि सॉर्टिंग कैसे करेंगे, राइट। तो सॉर्टिंग कैसे करेंगे ना, सॉर्ट मेथड इज अवेलेबल। बट हाँ, सॉर्टिंग में क्या प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है इसमें, जब सॉर्टिंग करते हैं हम तब क्या करता है, ये नंबर को भी एज एन स्ट्रिंग कंसीडर करता है। सॉर्ट मेथड ऑलवेज consider every value inside every primitive value to as a string, right। जैसे आप इसको सॉर्ट करना चाहोगे, जस्ट कमेंट इट आउट। ओके, सपोज मैं ये सॉर्टेड वैल्यू सॉर्ट किया मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रुको। ओके, सो प्राइस को सॉर्ट करने की ट्राई किया मैंने। सो ये सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट तो कर देगा, बट ये कैसे सॉर्ट करता है देखो आप। सॉर्टेड वैल्यू भी देखो, प्राइस भी देखो, और सॉर्टेड वैल्यू को रिवर्स भी करना है। रिवर्स बाद में बताऊंगा, ये भी बाद में बताऊंगा। लुक, अब ये किस तरीके से सॉर्टेड हुआ ना, 10.99 पहले आया फर्स्ट। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट किया, पहले 10 आया, फिर 3, 5, 6। व्हाई इट इज लाइक दिस, बिकॉज इट कंसिडर इट एज इज कंसिडर इट्स आस्की वैल्यू। देखो ये पहले 1 मिलता है उसको, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता है इसको। तो एज ए स्ट्रिंग में क्या होगा, ये 1 का आस्की वैल्यू कितना होता है, ये 3 से कम होगा डेफिनेटली, राइट। एंड 3 5 से कम होगा, एंड 5 6 से कम होगा, इसलिए इस तरीके से वो कंसिडर करता है इसको, एज ए नंबर कंसिडर नहीं करता। रिमेंबर, सॉर्टिंग में कभी भी नंबर पास करोगे तो इट विल बाय डिफॉल्ट कंसिडर एज ए स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर होता है, कैसे कंपेयर करता है वो, आस्की वैल्यू के हिसाब से, राइट। बट सब ये नेम्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं, नेम्स को सॉर्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे नेम्स देखो,
नेम सही से हुआ, देखो HPY देन C। क्यों C के क्यों लास्ट में हुआ? बिकॉज इट इज स्मॉल लेटर। आप आज की सीरीज पता है आपको, लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर फर्स्ट, ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल लेटर इज लेस देन दी 65। ये 65, बट ये 97 से स्टार्ट होता है स्मॉल। ये सुन Yes, लो, yes. तो ये लास्ट Yes. में ले गया। ये सब देखो YP ये एक्चुअली है असेंडिंग ऑर्डर में, बट C आप ऐसे नहीं समझ सकते कि ये ऐसा क्यों है। समझ सकते हो why it is like this? Because the ASCII value of small letter C is greater than the ASCII value of capital letter of C. So all capital letter are ascending order, are ascendingly H, P, then Y, right? If I convert this to capital CK, then what happen? It will come fast. It will come first. Did you see it? So ultimately what happen? It will consider every element as an ASCII value and sort it like this. Okay? But आपको सपोज नंबर को सॉर्टिंग करना है तो किस तरीके से करोगे? देयर आर सो मेनी वे। आप गूगल में ढूंढोगे तो देयर आर सो मेनी शॉर्टकट मेथड्स आर देयर, बट दिस इज आल्सो वन मेथड। इट इज बबल सॉर्ट करता है वो, बट ये एज ए नंबर कैसे कंसीडर करता है, यू कैन सी नाउ फ्रॉम हियर। लुक, अभी सॉर्टिंग सही है। 3.9, 5.9 and 6.9 and 10 is at the end, right? So now it's sorted properly. Okay, here one thing you notice that always it alter the original array. आप जब सॉर्टिंग करते हो तो ये ओरिजिनल एरे को ही मैनिपुलेट करता है, ये ब्रांड न्यू एरे क्रिएट नहीं करता, रिमेंबर। तो कभी भी सॉर्टिंग अप्लाई करते हो तो ये सोचना मत कि एग्जिस्टिंग एरे जैसे ही था ऐसे ही होगा, फिर इट विल जस्ट अल्टर्ड, राइट? अब व्हाट डज इट मीन? ये बबल सॉर्ट जिसने पढ़ा है इसके हिसाब से करता है कि ये कंपेयर करता है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन रिटर्न ऑलवेज, ये पॉजिटिव नंबर रखना, ये नेगेटिव नंबर रखना, तो ऑटोमेटिक ये काम करेगा। अब पॉजिटिव नंबर में इसको 3 रखो, 4 रखो, 100 रखो, इट डजंट मैटर, राइट? अब सपोज इसको -1 करोगे और इसको +1 करोगे, क्या करेगा ये? तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा वो। क्लियर? सो इसका मतलब क्या है? ये बबल सॉर्ट करता है, पहले ये दोनों को कंपेयर करेगा, जो ग्रेटर देन होगा उसको पहले लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है। बबल सॉर्ट इसके अंदर इंटरनली काम करता है। फिर क्या करेगा? ये 5 सपोज ग्रेटर, ये रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है तो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये रिवर्स कर देगा, 10 को लेफ्ट में ले लेगा, 5 को राइट में, राइट? देन अगेन 5 को 3 में कंपेयर करेगा, 3 शॉर्टर है तो वो राइट में ही रहेगा। देन 3 को अगेन 6 में कंपेयर करेगा, देन अगेन ये राइट में आएगा, देन अगेन 5 के साथ कंपेयर होगा, अगेन वो लेफ्ट में आ जाएगा, वो राइट में, ऐसे शफल करते रहते हैं। इसको बोलते हैं बबल शॉट। तो ये लॉजिक बहुत सारे शॉर्टकट है जो नंबर को सॉर्टिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर देने का वो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर डाल सकते हो, राइट? तो वो कंसीडर कर लेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में है, बट वो नंबर में कन्वर्ट करके करता है, ठीक है? अब उसको रिवर्स करना तो कैसे करोगे ना, हमेशा पहले सॉर्टिंग करना होगा, सॉर्टिंग करने के बाद आप ये रिवर्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? तो ये ओरिजिनल एरे बंद कर देता हूँ, बिकॉज यू नो दैट सॉर्टेड एरे इज इक्वल टू द प्राइस इन द ओरिजिनल एरे, बिकॉज इट अल्टर द ओरिजिनल एरे 1 ओनली, ओरिजिनल एरे 1 एंड द न्यू एरे आल्सो ये जनरेट करता है, बट बोथ आर अल्टर्ड। द न्यू एरे भी सेम वैल्यू कंसीडर करता है और एग्जिस्टिंग एरे भी सेम, वो अल्टर कर ही देता है। देखो यहाँ पे ब्रांड न्यू एरे बनता है सॉर्टेड वैल्यू,
but the price, the original array is also sorted, right? So इसी को ही हम रिवर्स करके देखते हैं. हो गया रिवर्स. ये असेंडिंग ऑर्डर में था, या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो रिवर्स कैसे काम करता है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने का और उसको रिवर्स करने का, राइट? आपको सपोज रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग चाहिए, देन फर्स्ट यू हैव टू सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, देन यू हैव टू यूज रिवर्स. सपोज मैं ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू डू दिस, राइट? और माइट बी दिस, ये नेम्स को, ये इसको करना चाहता हूँ, नेम्स को फॉर एग्जांपल, राइट? नेम को मैंने सॉर्टिंग नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे सॉर्टिंग नहीं किया मैंने, बट स्टिल आई वांट टू रिवर्स इट. तो सॉर्टिंग नहीं करूंगा तो ये ओरिजिनल एरे चेंज नहीं होगा, राइट? इट वाज एज इट इज. तो मैं सपोज यहाँ पे नेम लिया और नेम को यहाँ पर रिवर्स किया, तो क्या आउटपुट आ रहा है? सॉरी, प्राइस लिया, प्राइस को रिवर्स किया, नेम को लेता हूँ, चलो. तो क्या आउटपुट है? यहाँ पे सॉर्टिंग पहले नहीं किया, डायरेक्टली मैं रिवर्स कर रहा हूँ, रिमेम्बर. तो आउटपुट कैसे आ रहा है देखो, यहाँ पे सीके, प्रभात, योगेश, हरेश ऐसे था, और ये जस्ट रिवर्स कर दिया. ये एक्चुअली सॉर्टेड रिवर्स नहीं है, क्योंकि सीके, पी, देन वाई, देन एच, ये एक्चुअली ये जैसे था उसको खाली रिवर्स कर दिया. सीके आ गया लास्ट में, प्रभात सेकंड में था, सेकंड लास्ट में आएगा, योगेश थर्ड में था, ये सेकंड में आ गया, और हरेश लास्ट में था, फर्स्ट में आ गया. वो रिवर्स तो करता ही है, बट सॉर्टेड रिवर्स नहीं है ये. तो सॉर्टेड रिवर्स करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सॉर्ट इट, then you have to use reverse. Then what you have to do, you have to first use this, okay, means reverse it, then you can do this. Look, CK, Harish, Prabhat and Yogesh, then Yogesh, Prabhat, Harish and CK. देखो यहाँ पे मैंने names को ही करा, but sorted value को नहीं किया. But why it is working? Because as I explained, original array and a new brand new array, both will be similar, same over here. Same means both are new array, their reference is different, but value is altered in both of them. मैं इसको भी करूंगा तो भी यही होगा. ओके, मैं यहाँ पे sorted value is in brand new array, right? इसमें भी सेम आउटपुट मिलता है. तो सॉर्ट क्या करता है? फर्स्ट थिंग, सॉर्ट इज sorting an array, but how it sorts an array? By converting them to an ASCII. Remember, उसको ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करता है, then it reverse it. Okay, so if you are sorting an number, then also it will consider a string and sort it ascendingly by default. If you want to reverse it, then first you have to sort, then you have to reverse that. It creates a brand new array, of course, but it also affect or sort or alter the existing array as well. Clear? इसमें कोई डाउट है? नो. ओके, और एक चीज था ये इन्फो. अभी इन्फो को सॉर्ट करूंगा और रिवर्स करता हूं, चल देखते क्या हो रहा है. ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हुआ ना, नेम हरेश, नेम सीके, नेम हरेश, नेम प्रभात, नेम सीके, एंड रिवर्स किया तो अगेन हरेश, प्रभात एंड सीके. व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? कैन समबडी से प्लीज? ये जैसे था हरेश, प्रभात, सीके, सीके, प्रभात, हरेश, ये ऐसे ही है, हरेश, प्रभात, सीके. ये कोई सॉर्टिंग वोटिंग हुआ ही नहीं एक्चुअली यहाँ पे जो प्रिंट करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है इसके अंदर. डू यू अंडरस्टैंड? ये सॉर्टिंग नहीं करूंगा ना, ये देखो, ये पूरा बंद कर देता हूँ, देखो इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर देता हूँ. सॉर्टिंग ना रिवर्स मुझे कुछ नहीं करना है. देखो ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड दिखाता है, देखो सीके, प्रभात, हरेश दिख रहा है. ये ब्राउजर की नेचर है
कि जो जब आप इसके अंदर चेक करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड करता है वो ऑब्जेक्ट को, बट ये सॉर्ट मेथड के थ्रू कुछ नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सॉर्टिंग नहीं कर सकते। रिमेम्बर, उसको सॉर्टिंग करने के लिए हमको बताऊंगा आगे। क्लियर? Yes, sir. अब ऑब्जेक्ट को करने के लिए हमको फिल्टर्ड यूज करना पड़ेगा। अभी फिल्टर ऑब्जेक्ट को करने के लिए नहीं, फिल्टर मेथड। ये फिल्टर मेथड क्या है? filter, reduce, split, join, then we will conclude. Spread operator I have already explained. Okay. फिल्टर किसको बोलते हैं? फिल्टर फिल्टर क्या करता है? व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर? फाइंड एंड फिल्टर। फाइंड आपको पता है फाइंड क्या काम करता है? व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंड? फाइंड क्या करता है? Particular object. Yes, find an element or object, right, inside an array of object, right, but it return the particular element only, single element to which you want to find, right? Map क्या करता है? Map create a brand new array, right, by from existing array, again array of object or might be normal array, right? Map and filter both work similarly, बट मैप मेथड में क्या होता है कि रिटर्न, हाँ मैप मेथड में भी रिटर्न होता है, बट हमको रिटर्न करना नहीं पड़ता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मैप, ये भी मैप भी क्या करता है? मैप इज ऑल्सो क्रिएट अ ब्रांड न्यू एरे, हाँ रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट, राइट। बट यहाँ पे क्या कि मैं इन मैप क्या होता है? आई कैन मैनिपुलेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, आई कैन अप्लाई कंडीशन एंड रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट, that element, and it will create a brand new array, right, without affecting existing array. यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि it will create a brand new array of course, but you cannot manipulate every element of the array. Remember, you can just only apply a condition over here. वहाँ पे क्या करते थे? In map method we are returning the element जिसको मैनिपुलेट किए हुए, राइट। यहाँ पे क्या होता है? जब कंडीशन मैच करता है, इट इज समथिंग लाइक फाइंड। फाइंड में कैसे हम कंडीशन ही यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है वो, एंड फॉर विच एलिमेंट इट विल रिटर्न ट्रू, देन इट विल रिटर्न दैट वैल्यू एंड स्टोर इन न्यू ब्रांड न्यू एरे, इन ए ब्रांड न्यू एरे। क्लियर? मैप में क्या होता है? डायरेक्टली वी कैन कंडीशनली or manipulating the existing element and create a new brand new element and return that element and store into the brand new array. but यहाँ पे क्या होगा? हम existing array का element को manipulate नहीं कर पाते, but what we can do, if a condition is satisfied for that element, then we can return that element and create a brand new array. Clear? ये फाइंड जैसा काम करता है, रिमेंबर, बट फाइंड में ओनली वन एलिमेंट वी कैन रिटर्न। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट विल रिटर्न ओनली वन एलिमेंट। लेट मी शो यू द फाइंड। फाइंड में क्या होता था? मैं वही कंडीशन ही रिटर्न करता था यहाँ पर, जिसके साथ वो कंडीशन मैच करता था वही एलिमेंट खाली रिटर्न करता था, बट इट इज नॉट क्रिएट एन ब्रांड न्यू एरे। खाली पर्टिकुलर एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं है, वो उसका कंडीशन जो भी अप्लाई आपने लिखा हुआ है, इफ सेटिस्फाई द कंडीशन द एलिमेंट विल बी रिटर्न। बट इन केस ऑफ फिल्टर, इफ कंडीशन, ये हर एक एलिमेंट का कंडीशन अगेन मैच करता है,
जिस एलिमेंट के साथ ये कंडीशन मैच होता है इट विल रिटर्न दैट एलिमेंट एंड क्रिएट अ ब्रांड न्यू एरे। फाइंड में एक ही एलिमेंट आता है, फिल्टर में मल्टीपल एलिमेंट आ सकता है और नया एलिमेंट बन सकता है। मैप में क्या होता है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हम कंडीशन भी दे सकते हैं एंड उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम खाली एक एग्जिस्टिंग एरे से नया न्यू एरे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, फिल्टर कर पाएंगे। जैसे ये ग्रेटर देन 6 होगा वही एलिमेंट को गेट करेगा वो, राइट। सो ग्रेटर देन 6 में कौन आएगा, 10 and 5.99 and create a brand new array। क्या ब्रांड न्यू एरे, फिल्टर वैल्यू, राइट। तो प्राइस तो एग्जिस्टिंग एरे है ही, विदाउट इफेक्टिंग दिस वी कैन क्रिएट अनदर वन। क्लियर? const price, then price is displaying over here, ऊपर कहीं पे प्राइस डिस्प्ले किया हुआ है। Let me comment this out। Did you see? So क्या क्या प्रिंट किया मैंने? Let me comment this out। Okay, now filter अप्लाई किया मैंने यहाँ पर, ये कहाँ से आ गया? Okay, clear? So यहाँ पे I have an array, I want to filter all the element and create a brand new array which is greater than 6. All those elements, those are greater than 6. So look at it. So original array, I am printing our original array which is 0.55, 10.5, this and जो new brand new array filtered value we can say 10 and 6 point, because these two elements are only greater than 6. So ये कोई specific condition आप apply करोगे और condition true होगा particular case में, then it will return that element only। find में जैसा ही काम करता है ऐसा ही, पर find में single element return करता है, but इसमें array of element return करता है। For example यहाँ पे मैंने इसके जगह में false लिख दिया तो कुछ भी return नहीं करेगा, empty array create किया, right। और यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा तो सबके सब रिटर्न कर देगा। सेम जो प्राइस में था इसमें कॉपी कर लिया, बट दोनों ब्रांड न्यू एरे, दोनों सेम नहीं है, राइट। बट इनके सब फाइंड, यहाँ पे फिल्टर के जगह में फाइंड यूज करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, ट्रू लिखूंगा तो एक ही एलिमेंट प्रिंट करेगा, ये ही खाली प्रिंट करेगा फाइंड में, फर्स्ट एलिमेंट ओनली। देखो यहाँ पे एरे नहीं है, खाली एलिमेंट प्रिंट कर रहा है। और फॉल्स करूंगा तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, अनडिफाइंड। क्लियर? फाइंड में एक ही एलिमेंट जहां पे फर्स्ट मैच करेगा वो वही रिटर्न करेगा। सेम कंडीशन में फाइंड के केस में लगाऊंगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा बताओ, ग्रेटर देन एक एलिमेंट रिटर्न करेगा। हाँ, कौन, जब पहली बार जो ये 10 पॉइंट प्रिंट करेगा वही रिटर्न कर देगा और नहीं करेगा। देखो इसके बाद 6.99 भी था बट वो नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि पहला जो ऑकरेंस मिलेगा हमको वही रिटर्न कर देगा वो। बट इन केस ऑफ फिल्टर every element inside this array, if satisfy the condition, it will return and create a brand new array. So clear? Find, filter and map। Yes sir। मैप में क्या होता है, एलिमेंट रिटर्न करते हैं, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट रिटर्न करता है एंड क्रिएट अ ब्रांड न्यू एरे। इन केस ऑफ फिल्टर, फाइंड के केस में वो कंडीशन मैच करता है तो पर्टिकुलर वही एलिमेंट ही रिटर्न करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। या रिमेम्बर, ये याद रखना, भूलना मत। स्प्लिट जॉइन वेरी इजी, वो मैं कल बता दूंगा। ऐसे हो तो रिड्यूस एंड स्प्लिट जॉइन, ओके, ये बहुत ही इजी है, आप खुद भी देख सकते हो। स्प्लिट ऑपरेटर ऑलरेडी बता चुका हूँ, एरे स्ट्रक्चर भी बता चुका हूँ, तो कल इतना थोड़ा बहुत बता दूंगा, 5-7 मिनट लगेगा। देन विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इवेंट, जो भी एक करना चाहेंगे हम। ओके, नाउ दिस इज ये एक्चुअली ये 6
प्योर ईयर 6। इसमें से क्या क्या ईयर 6 में वो क्वेश्चन भी पूछते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज न्यू इन ईयर 6 व्हिच वाज नॉट इन ईयर 5। पहले तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग, फिर लेट कॉन्स्ट है, ठीक है। ये कल मुझे याद दिलाना, मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं। या array Okay. manipulation function and object, again these are not basic but basic elements, actually javascript का basic चीज है। array, object, function, loop, operator and operator, right, and data type, ये basic चीजें है, but ये basic चीज का details level में है, right। अभी advance में क्या आएगा, promise, closure, then promise के बाद async await, then modular programming and class, ये आएगा एडवांस में, राइट। तो यहां तक बहुत ही क्वेश्चन इसकी जिस जितना मैंने बताया ना, इसी के अंदर तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास, राइट। तो इसमें अभी तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो कल मॉर्निंग में, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। ओके, अभी पीछे से जितना भी यहाँ तक आप प्रैक्टिस करते थे, कुछ भी मिला है, यू कैन टॉक टू योर मेंटर्स एंड यू कैन आइडेंटिफाई, ओके, यू कैन क्लैरिफाई। चलो, थैंक यू गाइस। समझ में आ रहा है ना? प्लीज अपलोड द वीडियो। हाँ, श्योर श्योर।